آج ہم آپ کو فلم دی جینیفر بارڈی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو 2009 میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلم دیکھنے سے پہلے اس طرح کی مزید فلمیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فلم کا آغاز جیل کے قیدیوں میں سے ایک الیشبا نامی کردار سے ہوتا ہے۔ وہ قیدیوں سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اور گارڈ سے بھی لڑتی ہے، اسی وجہ سے اسے قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ الیشبا پھر یہ بیان کرنا شروع کرتی ہے کہ وہ جیل میں کیسے آئی اور یہ اس کی زندگی کے بارے میں ہے، اور ہم اس کے ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب ایک ہائی اسکول کے منظر سے شروع ہوتا ہے۔ الیشبا ایک بے دھیانی، عجیب و غریب ہائی اسکولر ہے جو وہاں کی ایک ناقابل یقین حد تک خوبصورت اور مقبول طالبہ جینیفر کے ساتھ بہترین دوست ہے۔ وہ بچپن سے ہی دوست رہے ہیں، اور اگرچہ باقی سب بشمول الیشبا بوائے فرینڈ چپ یہ سوال کرتے ہیں کہ دونوں دوست کیوں رہتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے، لیکن الیشبا اور جینیفر دو بہترین دوست ہیں۔ وہ شیطان کی کیٹل نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں جس کا نام ایک منحوس آبشار کے نام پر رکھا گیا ہے، جس میں ایک گھماؤ پھراؤ والا سوراخ ہے جسے کوئی نہیں جانتا کہ کہاں تک جاتا ہے۔ سائنسدان تحقیقات کے لیے شہر میں آئے لیکن آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ایک دن جینیفر الیشبا کے پاس چلی جاتی ہے اور الیشبا سے کہتی ہے کہ وہ لو شولڈر نامی ایک نئے راک بینڈ کی لائیو پرفارمنس دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہو۔ جینیفر نے کہا کہ وہ کس طرح مرکزی گلوکار کو پرکشش محسوس کرتی ہیں اور آج رات ان کے ساتھ ڈیٹ کرنا چاہیں گی۔ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا سب سے اچھا دوست اکیلے جائے۔ الیشبا نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا اور جینیفر کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی۔ بعد میں رات کو چپ وہ الیشبا کے ساتھ تھا جب وہ بینڈ دیکھنے کے لیے جینیفر کے لینے کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ الیشبا اور جینیفر کا کسی نہ کسی طرح کا نفسیاتی تعلق ضرور ہے، کیونکہ الیشبا یہ بتا سکتی ہے کہ جینیفر کب اپنے گھر پہنچتی ہے۔ چپ جو اس کا مشاہدہ کرتا ہے اسے یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ پھر وہ نیچے جاتا ہے اور جینیفر اور الیشبا کو بات چیت کرتے دیکھتا ہے۔ اس کے رد عمل سے ظاہر ہے کہ وہ جینیفر کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ الیشبا کے ساتھ کس قدر بےہودہ رویہ ہے۔ جینیفر اور الیشبا پب پہنچی جہاں نیا راک بینڈ پرفارم کرنے والا ہے۔ وہاں وہ اپنے ہم جماعت کریگ کے پاس سے گزرے جو شہر میں ہر کسی کی طرح جینیفر کو پسند کرتا ہے۔ وہ احمد سے بھی ملتے ہیں جو ہندوستان کا ایک فارن ایکسچینج طالب علم ہے جو اسی اسکول میں جاتا ہے۔ اس کے بعد افسر رومن جو وقتاً فوقتاً جینیفر کے ساتھ سوتا ہے ان کے پاس آتا ہے۔ تاہم جینیفر نے اسے نئی راک بینڈ گلوکارہ کے لیے چھوڑ دیا جس کے پاس وہ فوری طور پر الیشبا کے ساتھ چلتی ہے۔ اس کے بعد جینیفر نے بے شرمی سے اپنا تعارف مرکزی گلوکار نکولائی سے کرایا اور اسے ایک مشروب خریدنے کی پیشکش کی۔ جب جینیفر بار میں جاتی ہے الیشبا نے نکولائی کو اپنے بینڈ ساتھی سے جینیفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ کنواری ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ نکولائی ایک شکاری ہو سکتا ہے، الیشبا اس کا سامنا کرتی ہے اور اسے جینیفر سے پیچھے ہٹنے کو کہتی ہے۔ اس نے جینیفر کو خبردار کیا کہ وہ اس راک بینڈ سے دور رہیں، لیکن اس نے الیشبا کی بات نہیں سنی اور اس کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ جب بینڈ پرفارم کرنا شروع کرتا ہے تو دونوں بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طرح ان کی کارکردگی کے بیچ میں ہی عمارت کو آگ لگ جاتی ہے۔ بینڈ اس سے بے نیاز لگتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گھبرا کر عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عمل میں روند جل کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ الیشبا ایک لرزتی ہوئی جینیفر کو بیت الخلا کی کھڑکی سے عمارت سے باہر لے جاتی ہے اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نکولائی اچانک ان کی طرف بڑھتا ہے اور جینیفر کو وسکی پینے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ حیرت زدہ نظر آنے والی جینیفر کو دور کرتا ہے، جبکہ الیشبا جینیفر سے رہنے کی التجا کرتی ہے، لیکن جینیفر نے بڑی بے باکی سے اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب وہ اس رات گھر پہنچی تو وہ گھبراہٹ سے اپنے بوائے فرینڈ چپ کو فون کرتی ہے اور اسے ان ہولناک چیزوں پر پکڑتی ہے جن کا اس نے ابھی مشاہدہ کیا تھا، جس میں لوگ جل کر ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے اچھا دوست ایک اجنبی کے ساتھ وین میں چڑھ جاتا ہے۔ چپ وہ جینیفر کو ناپسند کرتا ہے، الیشبا سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بہترین دوست کی فکر نہ کرے۔ کچھ ہی دیر بعد الیشبا جب دروازے کی گھنٹی کی آواز سنتی ہے تو چونک جاتی ہے اور جواب دینے کے لیے نیچے اترتی ہے، لیکن دروازے کے باہر کوئی نہیں ملتا۔ لیکن جب وہ واپس اوپر جانے والی ہوتی ہے تو وہ کچن سے آنے والی سرسراہٹ کی آوازیں سننے لگتی ہے اور ٹپکتے ہوئے سنک کو بند کرنے کے لیے چل پڑتی ہے۔
लेकिन फिर जेनिफर खून में ढकी हुई उसके सामने खड़ी है, इसके चेहरे पर एक फहश मुस्कुराहट है। इसके बाद वो फ्रिज खोलती है और खाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके मुंह से काला माय निकालती है। एलिशिबा ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन अचानक जेनिफर ने इसे दीवार से लगा लिया और इसे प्यार करना शुरू कर दिया। इसके बाद जेनिफर एलिशिबा की गर्दन काटने के लिए हरकत करती है, जब तक कि इस पर कोई निशान नहीं रह जाता। फिर वो घर से बाहर निकल जाती है, जबकि पस मंजर में पुलिस के सायरन सुनाई दे सकते हैं। अगले दिन स्कूल इस बारे में खबरों से गूंज रहा है कि किस तरह कस्बे का पब जल गया और सिर्फ चंद लोग ही इसे निकालने में कामयाब हुए, जबकि एलिशिबा सोच में डूबी हुई दिखाई देती है कि इसने कल रात क्या देखा। जेनिफर फिर इत्तेफाकना इसकी तरफ चलती है, जो बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है और परेशान कुन हद तक इस हकीकत के बारे में बेनियाजी के जिन लोगों को वो जानते थे कि कल रात आग में हलाक हो गए। जेनिफर यहां तक कि ऐसा काम करती है जैसे इसे याद नहीं कि वो कल रात एलिशिबा के घर में कैसे दाखिल हुई और तमाम चीजें किचन के फर्श पर फेंक दे। इस दिन क्लास के बाद एलिशिबा ने अपने बॉयफ्रेंड को जेनिफर के कल रात के अमाल के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो इस मौजू पर इससे बात नहीं करना चाहता था और सोचता है कि वो बेवकूफ है। स्कूल के दूसरी तरफ जेनिफर क्रेग के सबसे अच्छे दोस्त जोनास के पास चली गई, जो गमज़दा है क्योंकि दूसरी रात क्रेग की आग में मौत हो गई। जेनिफर फिर इसे कायल करती है कि क्रेग ने इसे बताया कि वो और जोनास एक साथ अच्छे लगेंगे, और वो जोनास को जंगल में इसका पीछा करने पर आमादा करती है। वो एक दूसरे को चूमना शुरू कर देते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि जंगल के जानवर उनके गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोनास फिर रुक जाता है और हैरत से इसे देखता है, लेकिन वो बेचैन रहती है और इसे सिर्फ ये बताती है कि जानवर किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। और फिर ऐसा होता है, जेनिफर एक मखलूक में तब्दील हो जाती है और शैतानी तौर पर उसका गोश्त खा जाती है, जबकि एक उस्ताद जोनास की चीखें बेबसी से सुन सकता है। इस दिन के बाद एलिशिबा रेडियो सुनते हुए खाना पका रही थी, जब उसने सुना कि नया रॉक बैंड जिसे इसने और जेनिफर ने इस रात देखा था, इसके पैरोकारों की बड़ी तादाद में इजाफा हो गया है। इस रॉक बैंड को अवाम ने मुबैना तौर पर जलती हुई इमारत से लोगों को बचाने के लिए कौमी हीरो भी समझा। दरी असना हाई स्कूल के उस्ताद को जंगल में जोनास की फटी हुई लाश मिली। इसके बाद पुलिस को फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर तलब किया जाता है, जबकि जेनिफर को करीब ही एक झील में बरहना तैराकी करते हुए देखा जा सकता है। वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून और मुतमईन नजर आती है। इस रात जेनिफर ने अपनी बेहतरीन दोस्त एलिशिबा को फोन किया कि वो इस वक्त हैरत अंगेज महसूस कर रही है और एलिशिबा को आग में मरने वाले लोगों के लिए गम करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोग हर वक्त मरते हैं। एलिशिबा को बिलाखिर कॉल मुनक़ते करनी पड़ी, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड इसे कॉल कर रहा है। कॉल के दौरान वो इसे बताता है कि जोनस, जो इसका पड़ोसी था, मर चुका है। ये सुनकर वो इसे देखने और तसल्ली देने के लिए दौड़ती है। चुप ने वजाहत की कि किस तरह बज़ाहिर जोनस की लाश मुकम्मल तौर पर फटी हुई पाई गई। अगले दिनों पूरा कस्बा इतने कम वक्त में गिनवाई जाने वाली बहुत सी जानों की वजह से गमज़दा है, सिवाय जेनिफर के, जो पहले से कहीं ज्यादा खुश दिखाई देती है। कस्बे में रूनुमा होने वाले हालिया वाक़यात के बारे में खबरें इसे कौमी खबरों में जगह बनाती हैं, और ऐसा लगता है कि नया रॉक बैंड ज्यादा से ज्यादा पहचान और शोहरत हासिल करता जा रहा है। वक्त उड़ता है, शहर के लोग अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक माह बाद जेनिफर क्लास के दौरान पीला और बीमार दिखाई देती है। क्लास खत्म होने के बाद कोलन नामी एक लड़का उनके पास आता है और शर्माते हुए जेनिफर से बाहर निकलने का मुतालबा करता है, लेकिन वो सर्द मेहरी से इसे बता देती है। एलिशिबा ने आवाज दी कि वो सोचती है कि कोलन ठंडा और मेहरबान है, जिसकी वजह से वो जेनिफर को अपना इरादा बदलने पर मजबूर करती है और इसे आज रात अपनी जगह पर मदऊ करती है। एलिशिबा का बॉयफ्रेंड चुप फिर जाहिर होता है और वो हिफाजती तौर पर इसे चूमती है, क्योंकि जेनिफर उसके साथ छेड़छाड़ कर सकती है। इस रात एलिशिबा और चुप ने पहली बार जिनसी ताल्लुक करने का फैसला किया। इसी वक्त कोलन इस पते पर चला गया जिस पर जेनिफर ने इसे टेक्स्ट किया। वो एक खाली घर के सामने पहुंचा। मुतजस्सिस वो बहरहाल अंदर चढ़ जाता है। इसने दूसरी मंजिल पर जेनिफर को घूरते हुए पाया। इस वक्त कोलन को इस वक्त एहसास हुआ कि ये जेनिफर का असल घर नहीं है। जेनिफर फिर इसे बाकाना शुरू कर देती है, लेकिन किसी मौके पर ऐसा होता है, कोलिंस खौफजदा हो जाता है
और वो इसके बाजू को मरोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे इसने जोनस के साथ किया था, वो इफरीत बन गई, वो इसकी तौहीन करती है और उसका गोश्त खाती है। इसी वक्त एलिशबा ने एक अजीब व गरीब नज़ारा देखा। वो छत से खून बह रहा है और एक ज़ुम्बी नजर आने वाले जोनास और जेनिफर को कमरे की दूसरी तरफ देखती है। एलिशबा बाहर निकलती है, कपड़े पहनती है और चिप्स हाउस से भाग जाती है। लेकिन रास्ते में वो जेनिफर को देखती है और इसे देखकर हादसे से बच जाती है। इसके बाद वो एक लम्हे के लिए गाड़ी चिल्लाना बंद कर देती है, लेकिन एक जंगली नजर आने वाली जेनिफर विंडशील्ड के ऊपर उतरती है, एलिशबा को डराती है और वो गाड़ी चलाकर घर वापस चली जाती है। एलिशबा घर वापस आती है और रोना शुरू कर देती है, इंतहाई खौफजदा, और उसकी हकीकत पर सवाल करती है। एक बार जब वो पुरसुकून हो जाती है तो वो सोने के लिए अपने कमरे में वापस आती है, लेकिन वहां जेनिफर को पुरसुकून और चुपचाप नजर आती है। वो नरमी से एलिशबा को बोसा देती है और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारती है, यहाँ तक कि एलिशबा इसे खींच लेती है और जेनिफर से ये बताने का मुतालबा करती है कि क्या हो रहा है। जेनिफर इसे बताना शुरू करती है, इस रात क्या हुआ जब उसने उनकी वैन में नए रॉक बैंड के साथ सफर शुरू किया। ये महसूस करते हुए कि वैन जंगल में जा रही थी, जेनिफर खौफजदा होने लगी, इस डर से कि शायद वो इसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर हो जाए। इसने बैंड को ये बावर कराने की कोशिश की कि वो कन्वारी है और वो जिनसी ताल्लुकात के बारे में कतई तौर पर कुछ नहीं जानती थी। इसके बाद वैन जंगल के बीच में रुक गई और बैंड के साथी इसे जबरदस्ती घसीटते हुए बदनाम जमाना आबशार के पास ले गए और इसे बांध दिया जब वो एक शैतानी रस्म शुरू करने की तैयारी कर रहे थे जो शायद उन्हें मशहूर कर देगी। इसके बाद नक्कोलाई मरकजी गुलकार शैतानी मंत्र पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, फिर उसके सीने पर तेज धार ब्लेड से वार करता है, जिससे इसकी मौत हो गई। नक्कोलाई ने फिर सबूत से छुटकारा हासिल करने के लिए ब्लेड को सुराख में फेंक दिया। हाल में जेनिफर आगे बढ़कर एलिशबा को बताती है कि इसे इसके बाद किया हुआ इसके बारे में ज्यादा याद नहीं है, सिवाय इस हकीकत के कि वो जिंदा हो गई और खुद को एलिशबा के घर की तरफ चलते हुए पाया। इसे इंसानी गोश्त की ख्वाहिश भी महसूस हुई, लेकिन वो एलिशबा को मारने के लिए खुद को नहीं ला सकी क्योंकि वो इससे प्यार करती है, इसलिए इसने भागने का फैसला किया। इस रात के कुछ वक्त में जेनिफर अहमद के साथ फॉरेन एक्सचेंज के तालिब इल्म के पास आई जो भी आग से बच गया और इसे मार कर खा गया। वो ये भी बताती है कि जब वो भर जाती है तो वो नाकाबिल तस्खीर होती है। वो खुद को काट कर ये साबित करती है और ये दिखाती है कि जख्म कैसे ठीक हो जाता है। इसके बरक्स जब वो भूखी होती है तो वो बहुत कमजोर हो जाती है। एलिशबा जो इस तमाम मालूमात से खौफजदा है, जेनिफर को जाने को कहती है और जेनिफर खिड़की से बाहर निकलकर छलांग लगाती है। एलिशबा ने कोलन के जनाजे में शिरकत की और इसे खामोशी से एहसास हुआ कि इसने कल रात जेनिफर को खून में लथपथ देखा क्योंकि इसने अभी कोलन को मारा था। एलिशबा इस दिन के बाद लाइब्रेरी का रुख करती है और आने वाले दिनों के लिए वो अपना वक्त लाइब्रेरी में शैतानों और जादू के बारे में तहकीक करने में सिर्फ करती है और जेनिफर के बारे में कुछ वजाहत तलाश करने की कोशिश करती है। वो अपने बॉय फ्रेंड चुप के सामने अपने नताइज पेश करने की कोशिश करती है। ये दावा करती है कि किताबों के मुताबिक कोई शख्स शोहरत हासिल करने के लिए एक रस्म अंजाम दे सकता है। एक कनवारी को कुर्बान करके शोहरत हासिल करने की रस्म अदा की जा सकती है, लेकिन जब कुर्बानी कनवारी ना हो तब भी रस्म अदा करने वाले को शोहरत हासिल होगी, लेकिन कुर्बानी करने वाले के अंदर एक शैतान की रूह फंसी हुई होगी और वो मजबूर हो जाएगी जिंदा रहने के लिए इंसानी गोश्त खाते हैं। ताहम चुप का ख्याल है कि ये सच नहीं है और फिर भी इस पर यकीन नहीं करता। स्कूल डांस आ रहा है और एलिशबा चुप को कायल करने की कोशिश करती है कि वो हिफाजती वजूहात की बना पर ना जाए, लेकिन वो फिर भी जाने पर इसरार करता है, जैसा कि एलिशबा के साथ साथ शिरकत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आखिरकार रक्स का दिन आ जाता है और चुप के रात के लिए रवाना होने से पहले इसकी माँ इसे अपनी हिफाजत के लिए कुछ सपरे देती है। इस वक्त हम जेनिफर को दोबारा पीला नजर आते हैं, इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो भूख से मर रही है। एलिशबा पहले डांस पर पहुंचती है और चुप के वहां पहुंचने का इंतजार करती है। कहानी के दूसरी तरफ हम चुप को अकेले चलते हुए देखते हैं जब जेनिफर मशकूक तौर पर उसके पास जाती है। जेनिफर इस बारे में झूठ बोलना शुरू कर देती है कि किस तरह एलिशबा कोलन के साथ उसके साथ धोखा करती थी,
और इसलिए चुप को जेनिफर के साथ आने की जरूरत है। अब वो एलिशबा के झूठ को बेनकाब करेगी। स्कूल के रक्स में नया रॉक बैंड बजाना शुरू कर देता है। एलिशबा अभी तक चुप का इंतजार कर रही है। रॉक बैंड ने अपनी कारकर्दगी शुरू की। जेनिफर के पास वापस वो और चुप अब दरख्त के पीछे एक दूसरे को चूम रहे हैं। इसने इसे बहकाया। एलिशबा को ये एहसास हो जाता है कि कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल जाती है। किसी न किसी तरह फौरन जान जाती है कि कहाँ जाना है। जेनिफर चुप को एक लावारिस स्विमिंग पूल के अंदर लाती है, जबकि एलिशबा को वो जगह मालूम होती है जहां वो जेनिफर के साथ जाते थे। वो अपने साथ उनके मकाम की तरफ भागती है। जेनिफर चुप को दोबारा चूमने की कोशिश करती है। चुप ने अपना इरादा बदल लिया क्योंकि वो एलिशबा से मोहब्बत करता है और इसे धोखा नहीं देना चाहता था। इसकी हिचकिचाहट सुनकर जेनिफर चुप को तालाब में फेंकती है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ऐन वक्त पर एलिशबा पहुंच गई। अपने बॉय फ्रेंड को मुश्किल में देखकर एलिशबा तालाब में छलांग लगाती है और जेनिफर को खींच कर ले जाती है। इसके बाद वो इसे स्प्रे देता है और वो इसे जेनिफर के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ती है। जेनिफर उन पर कुछ काला मवाद फेंकती है और पानी पर मंडलाने लगती है। एलिशबा चुप को तालाब से उतरने में मदद करती है। एलिशबा फिर जेनिफर का सामना करती है और पूछती है कि इसे चुप के पीछे जाने और इसे तकलीफ देने की जरूरत क्यों है। लेकिन जेनिफर महज इन्हिराफ करती है और हतमी जवाब देने से इनकार करती है। जेनिफर फिर उसके करीब आती है, ठीक इसी वक्त जब चुप ने इसे जमीन पर गिरने से पहले धात की बार से आंख में वार किया। जेनिफर एलिशबा को उदास नजरों से देखती है और धाती बार निकालने के बाद वहां से चली जाती है। एलिशबा चुप की तरफ चली जाती है और वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का एतराफ करते हैं जब वो मौत के मुंह में चला जाता है। दूसरी तरफ जेनिफर कमजोर, पीला और टूटे दिल के साथ घर लौटती है। ये इस वक्त होता है जब एलिशबा अचानक खिड़की से अंदर आती है और जेनिफर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जेनिफर इसे जाने से पहले इसके गिले पर काटती है। एलिशबा ने एक बॉक्स कट्टर निकाला और उसके पेट पर एक एक्स निशान काट दिया। अपनी शैतानी ताकत के साथ जेनिफर ने उन्हें बिस्तर के ऊपर मंडला दिया और दोनों ने कुछ और हाथापाई, यहां तक कि एलिशबा ने जेनिफर के गिले से दोस्ती का हार उतार दिया। जेनिफर हैरान रह गई। एलिशबा के लिए इसके दिल में छर्रा घोंपने के लिए काफी वक्त था। यही वजह है कि एलिशबा जेल में है। इसके बाद हम मौजूदा दौर की तरफ लूटते हैं जहां एलिशबा कैद तन्हाई में बंद एक कैदी है। जैसा कि यह पता चलता है क्योंकि जेनिफर ने इसे काट लिया, अब इसके पास कुछ शैतानी ताकतें हैं। वो इसे जेल से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करती है। वो तसादफी तौर पर इस चाकू के सामने आती है जो नक्कोलाई मरकजी गुलकारा जेनिफर को मारने के लिए इस्तेमाल करती थी और इसे उठा लेती है। एलिशबा फिर एक नए रॉक बैंड कंसर्ट में शिरकत के लिए एक अजनबी के साथ सवारी करती है। रॉक बैंड के बड़े पैमाने पर कंसर्ट खत्म होने के बाद हमें मालूम होता है कि इस रात पूरे बैंड को कत्ल कर दिया गया। इस बात की निशानदेही करता है कि ये एलिशबा ही थी जिसने ये किया। फिल्म का इख्तिताम एलिशबा के साथ होता है जिसे सिक्योरिटी फुटेज के जरिए होटल के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इस तरह के मजीद मवाद बनाने में हमारी मदद करता है।